فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ حکومت کی درخواست پر مثبت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کرناٹک نے نارائن پور ڈیم سے تلنگانہ کے جورالا پروجیکٹ کے لیے 2 TMC پانی چھوڑنے پر رضامندی اظہار کیا ہے۔ پانی کے اس ہنگامی اجرائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ پانی جمعرات کو جورالا پہنچے اور اس سے پینے کے پانی کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے گی۔ GHMC کمشنر رونالڈ روز نے ٹرینی IAS کو اسکیموں کے نفاذ کی وضاحت کی جو GHMC میں لاگو کی جا رہی اسکیموں کا مطالعہ کرنے آئے تھے۔ کمشنر رونالڈ روز نے GHMC ہیڈ کوارٹر کے کمانڈ کنٹرول روم ہال میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے GHMC میں لاگو کی جا رہی اسکیموں کی وضاحت کی۔ کمشنر نے ڈیموگرافی، صفائی ستھرائی، کچرا جمع کرنے، ٹھکانے لگانے، CND ایڈمنسٹریشن، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ کے ساتھ GHMC کے ذریعے چلائی جا رہی مختلف اسکیموں کی وضاحت کی۔ GHMC میں 5 دنوں کے لیے تعلیم کے لیے آنے کے تناظر میں متعلقہ HODs کو اس تناظر میں اسکیموں کی جانچ کرنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے۔ اس میٹنگ میں ENC ضیاء الدین، CE دیوانند کشن، ایڈیشنل کمشنر اپیندر ریڈی، گیتا رادھیکا، سنندا، ٹرینی IAS سوما شنکر، امیت، کرن مائی، شاردا شکلا، یوراج، مایاک، وکاس اور دیگر نے حصہ لیا۔ ضلع میں 22,50,97,312 روپے نقد، 17,93,97,270 روپے کا دیگر سامان اور 26,832.805 لیٹر شراب اب تک ضبط کی گئی ہے۔ GHMC کمشنر رونالڈ روز نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر ضابط اخلاق نافذ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غیر قانونی شراب کے خلاف کریک ڈاؤن کے تحت 297 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور 294 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 مقدمات درج کر کے ایک شخص کو گرفتار کر کے 28,43,735 روپے نقدی، 5,55,605 روپے مالیت کا دیگر سامان اور 33.50 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ شہر حیدرآباد میں موسلادھار بارش نے 7 افراد کی جان لے لی۔ زیر تعمیر عمارت کے اسٹینڈنگ دیوار گرنے سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ حکام نے بتایا کہ تمام مرنے والے چھتیس گڑھ اور اڈیشہ ریاستوں کے مزدور تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور واقعے کی تحقیقات کر رہی۔ یہ واقعہ میڈچل ضلع کے بچو پلی میں رینوکا ایلما کالونی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ہورائزن راج کنسٹرکشن کمپنی ضلع میڈچل کے بچو پلی رینوکا ایلما کالونی میں سروے نمبر 345/406 میں HMDA کی اجازت سے سیلار 5 بالائی منزلوں کے ساتھ ایک رہائشی عمارت تعمیر کر رہی جس کا رقبہ تقریباً 2000 مربع میٹر۔ اس عمارت کی تعمیر میں اڑیسہ اور چھتیس گڑھ ریاستوں کے بہت سے مزدور کام کر رہے۔ مزدور تعمیراتی جگہ پر ٹین شیڈ میں رہ رہے۔ تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک کا کہنا ہے کہ ناگر کرنول پارلیمانی نشست پر پروین کمار IAS 115 مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایماندار اور انصاف پسند انسان ہے۔ بلا شبہ ریاست تلنگانہ میں تحریک مسلم شابان اور تمام مسلم جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ناگر کرنول میں مسلمان غور فکر کریں اور پروین کمار کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں۔ لوک سبھا کے عام انتخابات کے پیش نظر نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد پولنگ کے دن یعنی پیر 13 مئی کو زائرین کے لیے یاتریوں کے لیے بند رہے گی۔ تاہم زو پارک 14 منگل کو معمول کے مطابق صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک مہمانوں کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس دوران گھومنے آنے والوں سے گزارش کی گئی ہے کہ برائے مہربانی پولنگ کے دن 13 تاریخ یعنی کہ 13 مئی پیر کے دن زو پارک کی چھٹی نوٹ کریں اور زو پارک انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के सेहत का खास ख्याल रखते हुए कारवान असम्बली हल्के में 11 नए पार्क्स बनाए हैं, जो अपनी खूबसूरती, साफ व सफाई और खूबसूरत माहौल की वजह से दीगर पार्कों से बिल्कुल अलग है, जिससे अवाम काफी खुश हैं। में दोगुना इजाफा हो गया है। इलाके में इस तरह के पार्क बनने से अवाम में काफी खुशी है। उनका कहना है कि वो छुट्टी के टाइम अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हकीम पेट कुंडा का ये सालार मिल्लत पार्क एक फैमिली पार्क भी है, जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ सुबह शाम सैर तफरी करने के लिए आते हैं और यहाँ के साफ माहौल व ताज़ी हवा का मजा लेते हैं। पार्क के ग्राउंड में नौजवान और बच्चे खेल कूद की एक्टिविटीज करते रहते हैं। इसके अलावा पार्क में आने वालों के लिए वर्जिश का भी इंतजाम किया गया है। पार्क में वर्जिश करने के लिए कई बेहतरीन और अच्छी मशीनें लगाई गई हैं, जिसका लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि इस तरह के पार्क हर इलाके और हर कॉलोनी में होने चाहिए, ताकि आवाम, खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और मरीज खुली और साफ सुथरी फिजा में सांस ले सकें। मजलिस ने हमेशा आवाम के फायदे के लिए काम किया है, इसलिए कारवान की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान खुशामद का बंधन काफी मजबूत है। इतने बरसों से इन दोनों ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दे दिया था। पहली मर्तबा बीजेपी ने मजलिस को चैलेंज किया। इस चैलेंज से मजलिस घबराई हुई है, इससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां मजलिस की कामयाबी में लगी हुई हैं। ये दोनों मजलिस का साथ दे रही। बीजेपी के उम्मीदवार बंडी संजय की जीत पहले ही तय कर दी है। कांग्रेस की हार यहाँ इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मना पाई, जबकि बीआरएस का यहाँ कोई अता पता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तीसरे मरहले की पोलिंग पूरी हो गई। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद का तीसरा फ्यूज उड़ गया। अब 4 मरहलों की पोलिंग बाकी है। अवाम के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए का विजय रथ तेजी से आगे बढ़ रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से दिल्ली तक डबल आरटेक्स के काफी चर्चे हैं। इस डबल आरटेक्स को तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वाईएस शर्मिला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत में दाखिल होने का हक खो चुके हैं कहा, क्योंकि मोदी ने 10 बरसों से आंध्र प्रदेश को धोखा दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासत में असेंबली और लोकसभा इलेक्शन बैक वक्त मुनक़िद हो रहे हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। आपको रियासत में दाखिल होने का कोई हक नहीं। रियासत के अवाम आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं। मोदी ने 10 बरसों तक रियासत के साथ दगाबाजी की और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। कड़पा में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शर्मिला ने ये बात कही। रेडियो दिखाते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को तोहफा में रेडियो रवाना कर रही, ताकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी तेलुगु अवाम के मन की बात सुने। वज़ीर-ए-आज़म के हालिया तवातर दौरों का हवाला देते हुए शर्मिला ने दावा किया कि मोदी रियासत को तरक्की देने के लिए नहीं, बल्कि इंतखाबी सियासत के लिए एपी का मुसलसिल दौरा कर रहे। ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలేం పిచ్చోళ్ళు కాదు మోడీ గారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల గుండె చప్పుడు ఒకసారి వినండి. మోడీ గారి మన్ కీ బాత్, మోడీ గారికి చాలా అలవాటిది. మోడీ గారికి ఇలా చెప్తే ఆయనకు అర్థమవుతుందేమో అనిపించింది మాకు. మోడీ గారి మన్ కీ బాత్, ఆంధ్ర రాష్ట్రుల మన్ కీ బాత్ కూడా ఒకసారి మోడీ గారి చెవున పడితే బాగుంటుంది. మోడీ గారు, మీరు గత 10 సంవత్సరాలుగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్యాయం చేశారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన మీ మీద ఒక ఛార్జ్ షీటు 10 ఏళ్లకు గాను 10 ఛార్జెస్తో ఒక ఛార్జ్ షీటు మీకు పంపిస్తున్నాము. ఆ ఛార్జ్ షీట్ మీరు చదవండి. మీ మీద 10 అభియోగాలు ఏమున్నాయో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల మన్ కీ బాత్ మీరు అర్థం చేసుకున్నాక ఆ ఛార్జ్ షీట్ ప్రకారము ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు క్షమాపణ, లిఖితపూర్వకంగా ఒక క్షమాపణ లేఖ రాసి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల హక్కులన్నీ మీరు కాపాడతారని, వెంటనే ఫుల్ఫిల్ చేస్తారని ఒక రిటర్న్ అఫిడవిట్ రాసి
తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को राम का मुखालिफ गिरान देते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा लोकसभा इलेक्शन राम भक्त और राम के मुखालिफिन के दरमियान है। जो राम भक्त हैं वही हकीकी हुब्बुल वतन है। और घाटमपुर वाक़े पतारा रेलवे स्टेशन मैदान में अकबरपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह भोली की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 मराहिल के इलेक्शन होने के साथ ही मुल्क के निस्फ सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पूरे मुल्क में एक ही आवाज गूंज रही, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा है कि इस नारे ने ऐसा जादू किया है कि ऑपोजिशन चारों शाने चत हो गई है। जब उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा तो भारत के खिलाफ साजिश में मुलविस हो गए। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन के बयानात को पढ़ने से वाज़ेह हो चुका है कि इलेक्शन राम भक्त और राम के मुखालिफिन के दरमियान है। और इसीलिए ये रामद्रोही बातों से नहीं मानते हैं और इसीलिए हमने इसके लिए एक नया आविष्कार किया है और वह आविष्कार आपके सामने खड़ा है। इससे लोग घबराते बहुत हैं और उनकी घबराहट इस हद तक हो जाती है कि लोग अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब बस एक बार जान बकस दो। अब आप सोचो, जो लोग सत्ता में आने पर किसानों को, व्यापारियों को, बेटियों को, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, आज उनकी हालत देखते होंगे। जो पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज जब उनके गले में तख्ती देख करके जान की भीख मांगते हुए आप देखते होंगे तो आपको भी खुशी होती होगी ना? होती है कि नहीं होती है? और बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा दे सकती है। भाजपा सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। भारतीय जनता पार्टी के लीडर व एमपी विजय भाभूर के बेटे ने गुजरात के दाहोद में पोलिंग बूथ को हाईजैक कर लिया और इस पूरे वाक़े की लाइव वीडियो शेयर की। बाद में बीजेपी लीडर के गुंडे बेटे ने इस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवा जमात के लीडर के बेटे पर इल्जाम है कि उसने पोलिंग बूथ पर मौजूद ओहदेदारों से बदसलूकी भी की और अपने साथियों के साथ मिलकर भगवा जमात के हक में बोगस वोटिंग की। वाज़ेह है कि इस पूरे मामले पर गोदी मीडिया खामोश है। यही वाक़या अगर कोई दूसरी अपोजिशन जमात के लीडर या कायदीन के बेटे करते तो अभी गोदी मीडिया हंगामा खड़ा कर देता। इस मर्तबा के इलेक्शन में भगवा जमात खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आई है। आए दिन हिंदू मुस्लिम नफरत अंगेज तकारीर के जरिए मासूम अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही। भगवा जमात के कद आवर लीडर दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ खुले जहर उगल रहे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपने 10 साल मियाद कार में मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। अपने भाई और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की हिमायत में अवामी राब्ता मुहिम करने पहुंची वाड्रा ने
बजरावा और थलबासा में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत का वाहिद मकसद चुनिंदा सरमायादारों को फायदा पहुंचाना, उनके कर्ज माफ करना। वहीं दूसरी जानिब आम आदमी को 5 किलो मुफ्त राशन का लालच देकर हुकूमत ने उन्हें महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में ढकेल दिया। उन्होंने कहा है कि समाजी इंसाफ के तई जहदकार राहुल गांधी को रोकने के बीजेपी हुकूमत ने तमाम कोशिशें की, उन्हें पार्लियामेंट से बाहर निकाला, यहाँ तक कि उन्हें घर से भी बेदखल कर दिया। लेकिन मुल्क की आजादी के बानी बाबाए क़ौम महात्मा गांधी के इक़दार पर चलते हुए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई तक की हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर लोगों के मसाइल को समझा और उनकी आवाज बुलंद की। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कर्नाटक यूनिट की एक पोस्ट को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी और उसे कानून के खिलाफ वर्जी करार दिया, जिसके बाद बीजेपी कर्नाटक टीम ने उस पोस्ट को हटा दिया है। कमीशन की तरफ से एक्स के नोडल ऑफिसर को भेजे गए खत में कहा गया कि बीजेपी फॉर कर्नाटक की सोशल मीडिया पोस्ट कानून के खिलाफ है और इसके खिलाफ बेंगलोर में मुकदमा दर्ज किया गया। कमीशन ने कहा है कि रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक्स को 5 मई को ही इस पोस्ट को हटाने को कहा था, लेकिन इसे अब तक नहीं हटाया गया था। कमीशन ने इस पोस्ट को फौरी तौर पर हटाने को कहा। कमीशन ने खत के साथ बेंगलोर शहर के 42वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर केस की एक कॉपी भी मुंसलिक की है, जिसमें कर्नाटक बीजेपी के सदर विजेंद्र बी येदियुरप्पा और बीजेपी कर्नाटक के ट्विटर हैंडल के ऑफिसर इंचार्ज को मुद्दा बनाया गया। इस मामले में शिकायत कुनिंदा ने कर्नाटक बीजेपी की वेबसाइट पर जारी की गई एनिमेशन तस्वीर पर अपनी शिकायत की बुनियाद रखी, जिसमें एक घोंसले में 3 अंडे रखे गए जिन्हें दर्ज फहरिस्त जात, कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी करते हुए दिखाया गया। इस घोंसले में एक और अंडा रखा गया जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और इसमें दिखाया गया कि राहुल गांधी और वजीर आला सिद्धरामैया इन अंडों से निकलने वाले चूजों में सिर्फ एक को खिला रहे, जो कि मुसलमान परिंदे की अलामत है। इस पोस्ट के जरिए सिर्फ एक बरादरी की तरफदारी करने का अंदिया दिया गया। मौसम हज में मुख्तसर अरसे के लिए बड़ी तादाद में आर्जी मुलाजमिन की ज़रूरत होती है। इस साल हुकूमत ने मुमलिकत के गैर मुक़ीम बाशिंदों को भी आर्जी मुलाजिम के तौर पर काम करने की इजाज़त दी है। खारजी बाशिंदों के हक़ में एक खुश आइंद फैसला है। ऐलान की तफसीलात इस तरह है। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स ने रवां साल मौसम हज के दौरान आर्जी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद सऊदी शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों को मौका फराहम करने का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम हज के दौरान आर्जी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद अजीर वेबसाइट पर अपनी CV अपलोड कर सकते हैं। वजारत ने कहा है कि अजीर वेबसाइट पर हज के मुतालिक खिदमात के लिए अलग लिंक मौजूद है, जहां आर्जी मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों को इजाजतनामे जारी होंगे। वजारत ने कहा मौसम हज के दौरान खिदमात फराहम करने वाले इदारों को आर्जी मुलाजमीन तलाश करने में आसानी होगी। नेज मुलाजमीन को भी यही सहूलत हासिल होगी कि वह तमाम इदारों में अपनी खिदमात पेश कर सकें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।